good evening. Welcome to Chat with Khwahish, your wish, sponsored by Noor, the Destiny of Home. As you have seen that I have dressed something different today because we are celebrating this week as Fashion Week. Fashion is something, it's like a trend, it's a skill which few people are used to it and most of us we don't know yet. Fashion could be anything. It is one of the skill which is it's not inherited but it is up to adaptation. Now, today we are having one of the special guests who is known for his modeling and also for his fashion sense of humor. He is from Pakistan, and I'm so glad that he has given us his valuable time to chat with him. According to him, he says that fashion is something like which you are comfortable with, where you can easily carryable. It's not that you take a heavy look and you look so weird in it, and I do agree with that. Whenever you carry with a fashion sense, make sure that you are having it in a comfortable way. Today, I'm going to invite him to my chat show and let's interact with this personality. He's none other than Umar Malik from Pakistan. Let's welcome to our show Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Know the Destiny of Hope. Thank you so much, Mr. Umar, to accept our invitation short period of time. Welcome to Chat with Khwahish Your Wish, sponsored by Know the Destiny of Hope. How are you doing today? Thank you so much. Alhamdulillah, I'm good. And how are you? I'm great, thanks for asking. As you're aware, our talk show is going to be on air on YouTube every Friday, 5:30 to 6:30, and this is the first time ever we have introduced such unique concept. Are you excited to start the segment one? Yeah, sure. Okay. As you're aware, our segment one is connecting yourself. It's more about आपके बारे में हमको जानना है. And as you're aware, ये हफ्ता हम लोग fashion celebrate कर रहे हैं. So you're the most big example for me. So now Thank let's introduce yourself to our viewer. What do you think about yourself, your personality, आपके profession, and your personal life? My name is Umar Malik. I'm from Pakistan, and by profession, I'm a businessman. मैं last 5 years से business करता हूँ advertising का, और शोबिज में भी तकरीबन 3-4 साल मुझे हो गए काम करते हुए. बहुत सारे डिफरेंट बने एड्स, कमर्शियल एंड शूट्स वगैरह, स्टिल शूट, पोर्टफोलियो एंड रैम्प्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं. और उसके बाद दुबई में भी मेरा शूट रहा है. कुछ इंडिया के डायरेक्टर हैं, उनके साथ कुछ अभी मेरी अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है और कुछ करके आ चुका हूँ. कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो डिले हो रही हैं. और बाकी मैं तकरीबन 5 to 6 years से जिम ट्रेनर हूँ. फिटनेस ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं यहाँ पे जिम में. और मैंने लास्ट 2006 में इन ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट ली थी. और फिर मैंने तकरीबन 3 साल ट्रेनिंग करवाई. उसके बाद मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी थी. फिर मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करवाता रहा. और लाइफ में बस शुगल मेला ये चल रहा है. Wow, very impressive. How about your personal life, means like relation with your family, friends? फ्रेंड्स के साथ मेरा सर्कल बहुत ज्यादा है. उठना बैठना शोबिज के अलग मेरे फ्रेंड्स हैं. कुछ मॉडल, फीमेल मॉडल, मेल मॉडल, ये सब होते हैं. फिर उसके बाद कुछ बिजनेस के रिलेटेड वो होते हैं. कुछ मेरे कोलीग्स वगैरह, जॉब्स भी करता रहा हूँ, वो सोशल सर्कल बहुत ज्यादा है. गपशप उनके साथ रहती है. और फैमिली के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह गुड है. यकीनन इतनी सारी चीजों के बाद आपको पता ही है कि मैनेज करना, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, फ्रेंड्स को भी देना पड़ता है, फिर अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है. सारी चीजों को साथ लेके ही चलना पड़ता है. Wow, that's really good to know. तो आपका मेन कोर जॉब कौन सा है? Is it your business? Is it your fashion sense? कौन सा ज्यादा important? Like which one is more goal? मोर इम्पोर्टेंट इज माई बिजनेस. क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो ज्यादा टाइम मुझे बिजनेस को ही देखना पड़ता है. फिर बीच में कुछ शूट्स वगैरह, ये प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो भी मेहनत तो साथ साथ चल रही होती है, तो कंटिन्यू रखते हैं हम. Very good. That is like, सोने पे सुहागा कहते हैं ना, buy one get one, like Yeah. everything all together. That's good. Please, is job sake for the modeling, for the fashion sense, and as you know that you're in advertising.
सो आपने इस जॉब में से क्या सीखा, लाइक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस जॉब, दिस प्रोफेशन? अगर मैं फैशन को देखूं तो मॉडल सिर्फ मॉडल नहीं है, मॉडल एक पूरा लाइफस्टाइल। आप अगर सिर्फ ये कहें कि आप सिर्फ मॉडल हैं, आपने शूट्स किया, आपने रैम्प्स की और उसके बाद ब्ला 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 आपने करके तो आप बिल्कुल साइड पे हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। शोबिज एक प्रॉपर फील्ड है। और उसके बाद जो मॉडल है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे मॉडल जो होते हैं वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते, फिर ग्रूम करने के बाद अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, अकेडमीज ज्वाइन नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि कोई इंस्ट्रक्टर नहीं लेते। देखिए आप कोई भी चीज करते हैं लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हैं, आप हांडी बनाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आपको तवज्जो चाहिए होती है। हर एग्जैक्टली, चीज यस। एक तवज्जो मांगती है। तो अगर आप इतना बड़े प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी फील्ड को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ 4-5 तस्वीरें खिंचवाने से या आप 2-3 पोर्टफोलियो करने से आप मॉडल तो नहीं बन जाएंगे। मॉडल एक लाइफ स्टाइल है, आपका वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप मॉडल नहीं बन सकते। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो कि मॉडलिंग या फैशन से आना है, तो आपको उनको आप क्या नसीहत या क्या एडवाइस, लाइक व्हाट दे हैव टू? मैं सबसे पहले उन्हें ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे कंपटीशन इतना है, इतना कंपटीशन है कि हर जो लड़का जवान हो रहा है, जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो अपने आप को ग्रूम करे। गूगल पे, यूट्यूब पे मॉडल्स को देखे, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कपड़े कैसे वेयर कर रहे हैं। फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कोई ब्रांड अप्रोच करता है, मुझे पिच करता है कि आपके साथ हमने काम करना है, तो एक फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की शेरवानी है, तो मेरे ऊपर वो क्यों डिस्प्ले करेगा? ये ठीक है, उसने बेसिकली तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है ना, लेकिन प्रोडक्ट उसने उस बंदे को पहनानी है कि जिसने उसको वेयर करके उसको दिखाना है कि ये चीज है जो मैंने पहनी, ये इसकी ये कीमत है। तो नए लड़के जितने भी हैं उनको मेरी ये सजेशन है कि जब भी आप इस फील्ड की तरफ आए, सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्किंग करें। आपका बोलने का अंदाज क्या होना चाहिए, आपका उठने बैठने का अंदाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपनी स्किन पे फोकस करें, अपनी डाइट पे फोकस करें, अपने आप को ग्रूम इस तरह का करें कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस जो है या कोई भी टैलेंट एजेंसी जो है वो आपको रिजेक्ट ना कर पाए। perfect, yeah, it takes time क्योंकि या that business is not so easy because जी। competition ज़्यादा है, especially now people needs job, people wants हम्म। to get a job. So yeah, या well said. Yeah, people have to groom first themselves, यस। stable home by a few years, then only people will accept. हम्म। Um, what is your more passionate? आपको ज़्यादा passionate क्या है इस job में, like modeling, the fashion world? What's your more passionate about? मैं पैशनेट हूँ मॉडलिंग में, क्योंकि मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं, उसमें मेरा फेस जो है वो फैटी है। तो मैंने अपने आप को बड़ा स्लिम किया, फेस पे काम किया, अपने एब्स पे काम किया, अपनी बॉडी बनाई, फिर हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर वो मैं चलता रहा हूँ। इसलिए मुझे स्टिल शूट्स का बहुत ज्यादा शौक है। मैं वो मेरी आपने वॉल देखी होगी, तो उस पर मैं ज्यादा शूट्स करता ही रहता हूँ। Perfect. So सब लोग को डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट है, इंजीनियर, डॉक्टर, मार्केटिंग एंड ऑल दैट। व्हाई डिड यू सेलेक्ट टू बी अ मॉडल? ये फील्ड क्यों चुना? मुझे शुरू से ही इस मॉडलिंग का शौक था कि मैं अपने आप को देखता था कि यस आई कैन डू इट। तो मैं अपने आप को शुरू से ही इस चीज पे प्रिपेयर कर रहा था कि मैंने जिस टाइम ताइक्वांडो ज्वाइन की तो मैं अपनी बॉडी पे तवज्जो देता था कि मैंने आगे जिस टाइम थोड़ा सा टाइम आगे जाएगा, मेरी बॉडी स्किनी है, जिस टाइम इसको मैंने आगे लेके चलना है, तो मैंने क्या करना है। तो उस हवाले से मैं शुरू से ही अपने आप को इस तरह ग्रूम कर रहा था कि मुझे पता था मैंने मॉडल बनना है। वेल सेड। तो इस मॉडलिंग में, इस हम्म। बिजनेस में प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इट्स नॉट दैट हाँ सब कुछ चंगा हो या सब कुछ पक्का हो। तो लोग बहुत कुछ कमेंट करते हैं, नेगेटिविटी बहुत आते हैं। तो आप वो नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा आपको फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट नहीं करेगा। सम टाइम हैं? ऐसा होता है कि किसी को आपका फेस पसंद आ जाता है। देखिए मॉडल वो है ना कि जो जिसके चेहरे पे नजर ठहरे,
ये नहीं है कि मतलब मैं अगर जा रहा हूँ तो गाड़ी मेरी चल रही है और मैं देख रहा हूँ बस ठीक है यार। मॉडल का मतलब ये है कि इस तरह फेस जाए और नजर रुके उस, ठीक है, उसका फेस इस तरह का होना चाहिए। Okay. So how do you handle the negativity? Those the negative comments करते मैं हैं, so how do you सॉरी handle? सॉरी वो क्वेश्चन मेरे जहन से निकल गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं आपकी जहन में आती हैं कि यार लोग मुझे ये कहेंगे। अगर आप लोगों को देखना शुरू करेंगे कि मेरे साथ ये होना है वो होना है, आप कैमरे को कैसे फेस करेंगे? आप लोगों को फेस नहीं कर पा रहे तो आप कैमरे को कैसे फेस करेंगे? जब आप कैमरा आपके सामने आता है, तो अभी मैं सेट पे बैठा हूँ, तो एक शॉट लेने के लिए 20-25 लोग जो से हैं वो आपके लेफ्ट राइट होते हैं। तो आप Yeah. अगर ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग मेरिट पे ले रहे हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इन माइंड में सिर्फ आप ये रखें कि यू कैन डू इट। जब आपको अपने आप पर एतमाद होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप इजीली कर सकते हैं। Perfect, well said. And you know कहते हैं ना, एक मॉडल का और फैशन का बेस्ट फ्रेंड कैमरा ही होता है, या because the camera is the one who will roll you around. Okay, अगर when it आपको comes to, yes, tell me. अगर आपको कैमरे के सामने खेलना नहीं आता कैमरे से, तो Hmm. आप मॉडल कैसे बनेंगे, आप एक्टर कैसे बनेंगे? मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो भी लड़के मॉडलिंग के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने आप पर काम इस तरह का करें कि आपको जरूरत ना पड़े कि फोटोग्राफर आपको ये बता रहा है कि आप ये पोजेस दें। समटाइम होता है ऐसा कि ब्रांड के अकॉर्डिंग जो नीड होती है वो पोजेस आपको देने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास पोजेस की इतनी होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि फोटोग्राफर के साथ आप खेलें। Perfect, sir. So कोई challenges आपने face किया? It's not that कि हाँ मैं आप बैकअप इंडस्ट्री में आए हो, it's not that you settle up so fast. कुछ challenges तो चार आपने साल face किए होंगे. 4 साल हो गए हैं मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो साल गुजरा है मेरा, है तो कोरोना था, लेकिन कोरोना के दरमियान में मैंने इतना काम किया, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शूट्स, ब्रांड शूट्स, मैं अपने आप को मैंने फ्री नहीं छोड़ा। मैं प्रोडक्शन हाउसेस से मिलता रहा, वहाँ के लोगों से, फिर मैं टैलेंट एजेंसीज के पास गया, बहुत सारी मेरी मुलाकातें रहीं। तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी जगहों पे बंदा रिजेक्ट भी होता है। मैं कहूँ कि यार मैं टॉप मॉडल हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। रिजेक्शन हुई है, कई लोगों ने देखा है, कहते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता था मैं उनकी मजबूरी बन जाऊंगा। आज जिस टाइम भी मुझे कॉल Perfect. आती है, तो आज उन्हें उमर मलिक ही चाहिए होता You know, you remind me something. कहते हैं कि अपने आप को ऐसे कर लो कि लोग आपकी आदत बन जाए, आप किसी की है। आदत ना बनो. Well, perfect. You know, I can relate you so many contexts. I can relate you so fastly because this is a part of life. या Exactly. Ups and downs तो होता रहता है. With that note, is education required for the modeling career? नहीं, एजुकेशन, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप मॉडल हैं और आपको पढ़ना नहीं है और एजुकेशन के बगैर आप चल सकते हैं। देखें, बिगनिंग में, स्टार्टिंग में तो आप ये काम करते हैं कि आप स्टिल शूट्स कर रहे हैं, ब्रांड शूट्स आपके आगे, उसमें तो आपने कुछ बोलना नहीं। लेकिन जब अवार्ड शोज होते हैं, पार्टीज होती हैं, या गेट टुगेदर होता है किसी जगह पे भी, तो आपको जिस जंट्री में बैठना पड़ता है, Hmm. वहां पे बात करने का अंदाज, आपके खाने पीने का अंदाज, ये प्रॉपर एक लाइफ स्टाइल है मॉडलिंग। तो आप ये कहें कि आप सिर्फ विदाउट एनी एजुकेशन आप सिर्फ मॉडल हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप परफेक्ट। Perfect. आपको कोई अचीवमेंट इस मॉडलिंग और करियर में कुछ आपने अचीव किया हो, आप बता सकते हैं? मैंने अभी, मैं खैर जिस सेट पे बैठा हूँ, मेरा एक ड्रामा सीरियल आ रहा है हम चैनल पे, तो वो नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है। कुछ मेरे सॉन्ग्स हैं वो मैंने किए हैं। Wow. उसके बाद Excited दुबई to में watch. दुबई में मैं अभी रिसेंटली करके आया हूँ। मेरा अभी भी मैंने दोबारा वापस आना है वहां पे ना। कुछ इंडिया के लोग हैं जिनके साथ मेरा काम चल रहा है अभी भी। तो इसके बाद टर्की मेरा शूट है। तो ये जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, आप अच्छा काम करते हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका टैलेंट किसी जगह छुप सके। ये तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप लाइक टिकटॉक आपके पास है, इंस्टाग्राम है, आपके पास फेसबुक है, किसी जगह पे भी आप लोग, पहले तो होता था कि लोग ऑडिशन देने के लिए जाते थे। अब तो जितने भी Exactly. बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो आपको
आपके वीडियोस देख के आपको अप्रोच कर लेते हैं कि यार इसके अंदर कितना पोटेंशियल है? Well said. So, in this field, आपका सबसे फेवरेट पोर्टफोलियो कौन सा रहा होगा इन 4 मेरा सालों में? लास्ट ये जो अभी मैंने रिसेंटली किया है MHM, यहाँ पे है जो हमारे इस टाइम पे जो टॉप लीडिंग ब्रांड जा रहे हैं पाकिस्तान में, उसने मेरा किया था। आउटफिटर का जो अभी जिसने लास्ट किया था, तो वो मेरा सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो रहा। आई थिंक सो मैंने वही आपको शेयर भी किया था। Yeah, I have received that, and I swear it was amazing portfolios, to be honest. And with that note, it's not that कि हाँ हर इंसान खुद बनते हैं, लेकिन हर कामों में आप किसी से इंस्पायर होते हैं। तो आपने Yes. किसी से इंस्पायर हुआ है आपकी कैरियर लाइफ में? लाइक you got inspired with someone? मैं इस फील्ड में बताऊं तो अपने आप से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। आपके उसकी अलावा वजह किससे इंस्पायर हो? मैं अपने आप से इस वजह से इंस्पायर हूँ कि वजह यह है कि मैं जिस टाइम पे थक जाता हूँ ना, अभी कल रात हमारी शूटिंग चल रही थी, तो लास्ट मैंने मेरे 4-5 टेक शॉट थे जो मैंने देने थे। तो रात को तकरीबन 12:30 से 5:30 तक सारी रात हम जागे रहे। सारी रात मेरा शूट चलता रहा। लेकिन जिस टाइम मैं थक गया हूँ, जिस टाइम सुबह मैं गया घर में, तो मेरे अंदर मुझे पता था मैंने नेक्स्ट डे भी शूट पे आना है। तो इसलिए मैं जब भी थक जाता हूँ तो मैं मिरर में खड़े होके देखता हूँ कि यस, यू आर द ओनली वन, यू कैन डू इट। तो अपने आप से बहुत well, ज्यादा इंस्पायर हूँ। well said. और इस फील्ड में इस मैं इस yeah. इस फील्ड में पाकिस्तान के बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा जिनको देखता हूँ। शहजाद नूर हैं, इमरान अब्बास हैं, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं। और उनके पोर्टफोलियो, उनके शूट्स वगैरह, उनके सीरियल वगैरह, मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ। Well said. I'm really honored. To be honest, really, it's the first time I get interaction with some personality, and I'm so loving it. I hope our people and the entire viewers will love it because it's all about different career, which Yeah. nowadays is very popular. तो इस कैरियर में एज ए पर्सन आप कैरियर को अलग रखकर आप एक पर्सनल भी हो, आपकी पर्सनल प्राइवेसी भी है। सो जी। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस? आपका कमजोरी क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरी कमजोरी ये कह लें कि मैं अगर जिम ना जाऊं तो मैं लाइक बहुत ज्यादा लेजी हो जाता हूँ। जिम मुझे एक्टिव रखता है। और मैं बहुत सारी चीजें अगर देखूं, लाइक मैं अगर मेरा रात को शूट है तो मैं सुबह जिम जाऊंगा, और सुबह का शूट है तो मैं रात को जिम जिम मैंने लाजमी जाना है। जिम के बगैर वो हर एक चीज की होती है ना। तो मैं या मेरी वीकनेस में आप ये कह सकते हैं कि मैं जिम लाजमी जाता हूँ। व्हाट अबाउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ क्या है आपका? स्ट्रेंथ ये है कि मैं चीजों को, मुझे कभी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी टाइम देता है, मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। जो मुझे ये चीज बड़ी एक बेनिफिट देती है कि मुझे जिस टाइम पे ऑन सेट बुलाया जाता है, लोकेशन का बताया जाता है, तो मैं, चाहे वो मेरा क्लाइंट है या मैं इस फील्ड से हूँ या मैं शोबिस से हूँ या कहीं पे भी हूँ, कमिटमेंट जो सी है वो बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा रहता हूँ, ये मेरे अंदर पॉजिटिव। सो बीइंग ए मॉडल, being a businessman, being in advertising company, being in fashion sense, how do you schedule your work so smoothly? सबसे पहले तो मैं अपने बिजनेस को इस वजह से ज्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है मेरा वो बिजनेस है। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं कुछ शूट्स मेरे अगर चल रहे होते हैं तो मैं अपने स्टाफ को बता देता हूँ कि आज मैं शूट पे हूँ, वरना मैं सुबह सबसे पहले उठ के मैं ऑफिस ही जाता हूँ। 9 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक ऑफिस का अगर टाइम है, तो 9 to 3, 9 to 4 या 9 to 2 इतना टाइम मैं लाजमी ऑफिस को देता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन सारी चल रही होती है। फिर मेरे पास लैपटॉप हर वक्त मेरे पास गाड़ी में रहता है, चाहे मैं शूट पे हूँ या किसी जगह पे भी हूँ। मेरी सारी मेल्स जो सी हैं, ईमेल वगैरह सारी ओपन हुई होती है, मुझे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि ये काम चल रहा है और ये काम चल रहा है। ऑफिस को मैं प्रॉपर टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं शोबिज को भी टाइम देता हूँ। सबसे ज्यादा जो मुश्किल मुझे लगता है कि सारी थकन के बाद मेरी जो मेन जाके थकावट उतरती है वो उतरती है जिम में। मैं जिम जैसे ही पहुंचता हूँ तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ कि लाइक
Oh my God. This is different thing, normally when I used to join gym, I used to get, yeah, initially हाँ पसंद आता है, but then at the moment I like it's end. Come back after a short break. We are in conversation with Mr. Umar Malik from Pakistan, and we are moving to our segment number 2, which is connecting people. This is the segment which I love a lot because इसमें बहुत कुछ होता है, बहुत surprise element है. You will know so many things from our side, our team side. So I'm so excited. The first thing I want to ask in this segment is how you are along with your circle. आप अपने आसपास लोगों से कैसे? मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं बड़ा फ्रेंडली हूँ, बड़ा फ्रैंकली हम लोग मिलते हैं। कुछ बचपन के दोस्त होते हैं आपके, जिनके साथ आपकी काफ़ी गपशप रहती है। कुछ वही मेरे साथ कुछ मॉडल्स भी हैं, जिनको मैंने भी प्रमोट किया, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। तो साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारों के साथ मैं ठीक ही चल लेता हूँ। बीच में कुछ होते हैं, आप एज़ यू नो कि सारे ही बेस्ट बडीज़ नहीं होते, कुछ बस फ्रेंड्स ही होते हैं। So जब कंपटीशन आता है दोस्तों के बीच में, because बिजनेस में तो ये होता रहता है, that is normal thing. So how do you deal with your friends competition? फ्रेंड्स के साथ मैं कंपटीशन कभी नहीं करता। रिस्क जो है, जो नसीब है, चाहे वो शोबिज़ में काम मिल रहा है या वो किसी भी जगह पे काम मिल रहा है, तो ये नसीब की बात है। तो आप कंपटीशन अगर कहें कि कोई मेरी ये आदत है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरे कंपटीशन में आ रहा है तो मैं हमेशा उसे विन करा दूँ। यार तू जीत गया। क्योंकि दोस्तों में कंपटीशन नहीं करता। Well said. तो जब घर घर के बात आते हैं, मॉम डैड भाई बहन and all that, तो आप ज्यादा कनेक्टेड किससे हो? मैं ज़्यादा कनेक्टेड अपनी अम्मा से हूँ, किससे? अपनी मम्मा से, अम्मा से हूँ। ओके. तो अगर ये इंटरव्यू वो देख रहे हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी आपकी दुआएँ हैं, मैं घर से जब भी निकलता हूँ अम्मा से दुआएँ ले के निकलता हूँ। तो मैं अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगेन उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा जो अच्छी जो दुआएँ कर रही होती हैं, वो लाज़मी दुआएँ मुझे चाहिए होती हैं। I mean, we pray the same. And how about your dad? वो भी कुछ नहीं कहेंगे? अब्बू को मैं ज़रूर कहूँगा कि बस मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका नाम, अपनी पहचान, आपकी पहचान उसको ऊपर लेके जाएँगे। ओके. मैं ये बोलूँगा कि he is very courageous, बहुत courage है माशाअल्लाह, and he is very strong and very focused on his goals. और उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके हर आने वाली जो स्ट्रगल है उसको दूर करे और इसी तरह वो सक्सेस पाते रहें अपने रास्ते में। आमीन सुम्मा आमीन. ओके, आपने तो अभी बहुत तारीफें की हैं. कुछ यादें हैं उनके साथ जो आपने शरारत किया हो, एंड व्हेन यू रिमेंबर यू लाफ, यू स्माइल, ऐसे कुछ आदत है? तो मैं हम लोग बहुत क्लोज हैं और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है हमारी आपस में. हम बहुत दफा जाते हैं, नानी भी गए हैं और फिर वहाँ पे जाके काफी शरारतें वगैरह भी हुई हैं. तो देयर आर मेनी मेमोरीज यहाँ पे हम लोग काफी इकट्ठे थे सारे और हमने बहुत हंगामा किया, खुशी की है. Thank you so much to answer our call, Mr. Norman. Sorry to disturb you late night, but really it's a pleasure to chat with you. बहुत प्रोफेशनल मॉडल है, फील्ड में वो बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है. और एज अ फ्रेंड तो आपको बता रहा था, उसमें शायद ये मेरे साथ होगा, एज अ फ्रेंड है तो वो उनका कुछ और एटीट्यूड होगा. और जो उसको बहुत प्रोफेशनल है, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं और उनका किसी से कोई मतलब न लेना न देना, न कोई शिकवा ना गिला, जहाँ तक मैं जानता हूँ. Well said. Thank you so much for that. कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो अभी भी आप याद करते हैं तो आप हंसते हो? ये भी हम लोग ने किया था, ऐसा कुछ वाकया है? शादी ये है कि हम मेरा उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड है, ओके, एक मतलब डिस्कशन पर्सन है, बोल नहीं सकता, ओके, और सुन भी नहीं सकता, मतलब वो फिजिकली बहुत ठीक है. तो उसको मॉडल बनने का बहुत ज्यादा शौक है ना, मतलब वो कहता है हमें देख के कहता है कि मुझे मॉडल बनना है. किसी बात पे हम लेके तो मतलब कभी कभी हम इंतजार कर लेते हैं, ये हमारी यादें.
Thank you so much, Mr. Osman. Sorry for the late night call, and really वो वहाँ पे smile कर रहे. This is what we wanted. That कुछ connective हो जाए. Thank you so much to answer our call. Thank you. Very. Thank you so much for that. And कुछ यादें आप share करना चाहते हैं उनके साथ? कुछ हंसी मजाक जो आपने किया हो तो पुरानी ताज़ी यादें. कोई ऐसा प्रैंक है जो अभी भी आप लोग करते हो जो मजा आता हो? ओके, सो कुछ आप कहना चाहते हो? वो आपसे लाइन पे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं आप? अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और कुछ हेल्प करते दे आपको जिस जगह की बहुत आपने सोचे हुए हैं, जिस जगह पे जाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी, प्रोफेशनल के अंदर भी, अपने अपार्ट फ्रॉम जॉब के साथ के अंदर चल रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन को लेकर भी, तो अल्लाह ताला आपको सारे में कामयाब करे. आपका जो थेरेपी का वो चल रहा है, बस चल रहा है, उसको भी बहुत कामयाब करे, आपको करियर में भी कामयाब करे, पर्सनल लाइफ में भी करे. Thank you so much for answering our call, and thank you so much once again from the team of Chat with Khwahish. Thank you. क्या कहना चाहते हैं आप सब? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन को आपने कॉल की है मेरे बेस्ट बडीज हैं और मेरे हर अच्छे बुरे काम में मेरा साथ देते हैं, और मैं उन्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि थैंक्स अ लॉट आपकी बेस्ट विशेस के लिए. आपने इतनी दुआएं दी. अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल करके मुझे उस मकाम तक लेके जाए जो आप लोग दुआएं करते हैं, और जो मैंने चीज़ सोची हुई है, जो मेरा एम है, जो मेरा टारगेट है. Amin, Amin. That we also pray for you. All the best wishes. No, really, it feels so amazing. This segment, मुझे ये segment बहुत ही पसंद है because we are connected with real people. ये नहीं कि scripted है. Real people on call and you're not aware कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं. अच्छा, इनको किसी को भी नहीं पता कि जिनको आपने कॉल की है, इनको किसी को भी नहीं पता. So this is the best thing ever we have done. So now we are moving to our segment number 3. We'll take a short break right now. Stay tuned with us. We're in conversation with Mr. Omar Malik from Pakistan, and we'll be back with the rapid fire. Welcome back after a short break. We are in conversation with Mr. Omar Malik from Pakistan, and we are moving to our segment number 3, which is rapid fire. And I hope you're excited. Even I'm really excited with this round. So I will ask you so many questions. आपको फटाक से आंसर करना पड़ेगा. No break, no thinking, just जो भी है दिमाग में directly. तो first question is, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? In the top model in Pakistan. आपका सबसे favorite designer कौन है? HSY. आपको सबसे फेवरेट मॉडल आपका आज तक कौन है? असलैन लहरी. एंड आपको स्कूल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में क्रिकेट. अगर आपके पास ऐप है मोबाइल पे, कौन सा ऐप आप डिलीट करना चाहते हैं? कौन सा ऐप मैं डिलीट करना चाहूँगा? ऑडियो मिक्सर बीच में होते हैं, मैं वो बहुत कम यूज करना चाहता हूँ. कोई एक कहावत, कोई एक बातें जो आपको याद रहता है, जो हमेशा आपको एनर्जी देता है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आपका सबसे ख्वाहिश, ड्रीम्स, वेकेशन कहाँ जाने का मन है? स्विट्जरलैंड. वाह, गुड टू नो. अगर आपके पास लॉटरी का कोई चांस मिला, आप उस पैसों से आप क्या करना चाहते हैं? चैरिटी का काम. Well said. सबसे ज्यादा फेवरेट डिश आपका कौन सा है? चिकन बोनलेस. वाह. आप अभी कुछ पढ़ाई पढ़ रहे हो या done your education? Oh, yeah, I've done. आपको क्या सबसे परेशान होता है? आप लोगों से क्या चाहते हैं कि आपसे ना पूछे? बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, नॉन प्रोडक्टिव क्वेश्चंस लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो. आपका सबसे अभी जब मैं याद आपको बता रहा हूँ कि पहला मेमोरी फैमिली के साथ, so what is the first memory it comes to your mind?
खाना ईद का खाया था इकट्ठे और बहुत ज्यादा अलग अलग किया था, शुगल मिला था। वाह, गुड टू नो। आप सबसे किस चीज से बहुत खुशी है, शुक्रगुजार है? अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी एज में बहुत सारी अचीवमेंट्स है मेरे पास। एंड सबसे बड़ा झूठ आपने क्या कहा अपनी जिंदगी में? कुछ टाइम के लिए झूठी तसल्ली देता रहा कि सब ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं। आपको आपसे आपको क्या ज्यादा प्यार है? लाइक व्हाट डू यू लव अबाउट योरसेल्फ मोस्ट? अ, मैं बहुत ज्यादा सिंसियर होकर चलता हूँ। वेल सेड। अगर पैसा कुछ नहीं होता तो आपको क्या अहमियत है जिंदगी में पैसा के बाद? खुद को टाइम देना। सपोज आपके पास एक टाइम मशीन आ गया, आपको आपको पास्ट में लेकर जा रहा है और आपको कुछ यादें ताज़ा करनी है, तो आप कहाँ पे जाएंगे पास्ट में? स्कूल 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 टाइम। स्कूल टाइम। अगर आपको एक मौका मिला कि आपका दोस्त को पानी में ढकेलना है, लाइक इन स्विमिंग पूल एंड ऑल दैट, तो कौन होगा हिट सनी लिस्ट पे? सनी सनी इज माय गुड फ्रेंड। एंड ओके, अगर आपको किसी से मिलना है एंड यू आर ट्राइंग टू मीट हिम बट आप मिल नहीं पा रहे, तो वो कौन है? इन माय सर्कल या शोबिज या किस में आप? एनीवन जिससे आप मिलना चाहते हैं। मैं हमायूं सईद से मिलना चाहूंगा। किससे? हमायूं सईद इज द बेस्ट एक्टर। ओके, तो आप अभी अगर वो देख रहे हैं तो आपकी जगह आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? मैं जब भी कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा, आपके प्रोडक्शन में, आपके साथ टीवी में, प्ले में, किसी एड में, किसी भी जगह काम करना चाहूंगा तो जरूर काम। Well said. We are winding up with the rapid fire. Really, you did good, but yeah, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे is fine. So we are ending our rapid fire right now. Moving to our last segment, that is the main concept of the show, which is what is your ख्वाहिश, Mr. Omar? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक टॉप मॉडल में बनूं और टीवी प्लेस में मैं काम करूं, और उसके बाद जितना भी मैं कर सकूं अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो मैं सपोर्टिव रहना चाहूंगा सारा। Well, sir, thank you so much, Mr. Omar, for your time. Really, I was so surprised to get to know you, थैंक यू। especially with your friend circle and your friend circle connected number 2, connecting people. It was amazing to chat with you in this show. आप कुछ कहना चाहते हो at the last? We are moving to the segment. I don't want to finish this show, but what to do? We have also time limit and you are also time limit. So कुछ कहना चाहते हैं आप last में? मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जितने व्यूअर्स यहाँ पे देखेंगे, मेरी कोई भी बात अगर पूरे इंटरव्यू में से आपको एक भी बात समझ आती है तो प्लीज 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 उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करें, और जब भी आपको मेरी याद आए तो उसमें आपने मेरे लिए दुआ जरूर करें। Thank you so much, Mr. Omar, to accept our invitation once again. Now we have to wind up. We have to sign out from the show. Thank you so much for accepting and to be the part of Chat with Quiet Your Wish, sponsored by Know the Destiny Info. Thank you so much. We had a great time with Mr. Omar, and I'm so glad that I even learned so many things from him, especially on the work which he's been doing. We wish him all the best and success on his life, and we hope he has a best career. And as we wish that his charity programs to be successful, as well as to look after his family, we wish him all the best in his life. Remember, where is a will, there is a way. As I always say, this is what we are trying to let you know and make you aware. Connecting people, connecting yourself is the most important thing in this current situation. Remember, we are stuck to a COVID-19, which is having been a problematic everywhere. Remember, as per the government and the society approaches, we need to wear the mask, we need to maintain the social distancing, sanitize whenever required, and stop gathering. Please alert yourself and the people around. Remember, everyone is responsible for each and every action. Till then, it's me signing out from this today's episode. I hope you love it and you liked it as much I did. Until then, if you have and if you think you can be the face of this show, please do approach us. Drop your details to our email shown below in the description, or you can tag us in our Insta
chat with Khwaish, and we will get back to you. Remember, everyone has a story to tell. As Mr. Omar inspired us, you can also inspire us. Till then, it's me signing out from the show Chat with Khwaish, Your Wish, sponsored by Know the Destiny Hope.